There, ji. We have our recording beginning, and let's start the properly. Right. So this is 2024 variant 23 अक्टूबर नवंबर. ठीक है जी. आखिरी पेपर हमारा रह गया है 2024 में से. उसके बाद हम 2 दिन डायग्राम्स करेंगे सिर्फ, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला वापस अपने 25 के पेपर्स, फिर जो मार्च का आया हुआ है एक ही पेपर है, और फिर हम वापस 23 पे जाएंगे. सो दिस इज़ द आइडिया जी. कॉफ़ी, global coffee beans prices reach a new high. Coffee is big business, especially in United States. The global market was worth nearly 110 billion US dollars in 2020, with production around 10 million tons of coffee beans. 95% of this production came from thousands of small scale producers in South America, Central America, Asia, and Africa. If present trends continue, production is forecast to triple by 2050. The Arabica coffee bean price was at a 10-year high in January 2022, having more than doubled in 2021. Figure 1.1 shows the world price of coffee in United States dollars per pound weight. A pound is 454 diagrams. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला पैराग्राफ है कि कॉफ़ी जो है यूएस में इन पर्टिकुलर बहुत बड़ा बिजनेस है, और दुनिया का जो 10 मिलियन कॉफ़ी बीन्स की प्रोडक्शन है उसका 95% छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कर रहे हैं. प्रोडक्शन इज़ फोरकास्ट टू ट्रिपल बाय 2050. एक उन्होंने ब्रांड बताया कि अरेबिका कॉफ़ी जो है उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा थी, 10 ईयर हाई लेवल पे गई हुई है. और उसके बाद एक डायग्राम दिया जिसको हम क्वेश्चन के टाइम पे सॉल्व करेंगे. सो हाउ कैन दिस ह्यूज प्राइस इंक्रीज बी एक्सप्लेन्ड. बच्चों, कभी भी क्वेश्चन आए प्राइस इंक्रीज डिक्रीज पे, वजह उसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई ही होती है, तो ध्यान में रखिएगा. द मेन कॉज was a series of weather events affecting Brazil, the world's largest producer of high quality Arabica coffee beans. Its market share is 35% of total global supply. There was a severe drought in early 2021 that reduced the number of cherries which contain the beans on coffee bushes. The crop yield was further damaged by frosts that followed the drought, and as a result of these weather events, Brazil produced its smallest volume of quality coffee beans for 10 years. तो बेसिकली नज़र क्या आ रही है जी, दुनिया भर में सप्लाई कम हुई है बिकॉज ऑफ ब्राज़ील्स वेदर, अरेबिका कॉफ़ी इन पर्टिकुलर की, बिकॉज ब्राज़ील में ही ज़्यादा वो होती थी. 35% वर्ल्ड सप्लाई का उसका मार्केट शेयर था. और उधर क्या हुआ जी, पहले तो कहत आया, पानी की कमी हुई, जिसकी वजह से वो जो चेरीज डेवलप नहीं हुई जिनमें कॉफ़ी बीन्स बनते हैं, और उसके बाद ड्राउट के बाद फ्रॉस्ट टाइम, ये जो कोहरा जिसे हम कहते हैं, जो हमें सर्दियों में सुबह सुबह प्लांट्स में नज़र आता है, तो उसने फर्दर इस प्रोडक्शन को डैमेज किया. In addition, the production of cheaper, lower quality Robusta coffee bean in Vietnam was badly affected by storms, which stripped the bushes of their cherries. Overall, there was a very large decrease in the global supply of all coffee beans. वियतनाम में रोबस्टा नाम की कॉफ़ी जो है वो भी बुरी तरह अफेक्ट हुई, जो कि चीपर लो क्वालिटी कॉफ़ी थी. उसकी भी चेरीज नहीं बन सकी स्टॉर्म की वजह से. तो सप्लाई इश्यूज नज़र आ रहे हैं जी. सप्लाई इश्यूज अफेक्टिंग मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील and Vietnam mean that the volume of coffee beans produced regularly fluctuates between high years and low years. Producers try to reduce their risks through buffer stock schemes. Government उनकी हेल्प करती है in order to maintain a regular income stream. This type of scheme is particularly important. ठीक है, किधर लिखा हुआ है जी, हाँ, particularly important for the many small scale subsistence producers who have no other source of income. A1 वालों को बता दूं कि subsistence farming is when you
grow and consume the product yourself. Dramatic weather, sorry, जी, लेकिन वो 2 क्लासेस में नहीं ले सका ना, इसलिए आखिरी पेपर करवा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट में बताया है, ऑफ 2024, 24 की सीरीज़ खत्म हो रही है इंशाल्लाह आज या कल में, उसके बाद हम डायग्राम्स करेंगे, ठीक है? Yeah, the dramatic weather events of 2021 have been exceptional, although a few large-scale producers in Brazil who survived the immediate impact of drought and frost should gain from huge rise in price of coffee beans. But what about the thousands of producers elsewhere who lack power in the market? The most likely outcome is that they will once again become victims of the unpredictable global market for coffee beans. अब एक दफ़ा मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे आ गए हैं. चलिए कुछ अटेंडेंस बेहतर हुई है. Let's now move on to the questions. First question G, use a demand and supply diagram to show why there was a huge increase in the price of Arabica coffee beans in 2021. जब वो कह रहा है शो तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को उस वक्त है फिक्र हो रही है कि विल आई गेट द मार्क और नॉट सेकंड वन, तो मेक श्योर यू थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें. जी, अब मुझे बच्चों बताओ, जो आपने डेटा पढ़ा डिमांड सप्लाई के डायग्राम में कौन सा कर्व हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे? ये कौन बच्चा है? सॉरी, ईमान एक बार जरा फिर देखते हो मेरा बेटा, डेटा में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्या शिफ्ट हो रहा है देखिए जरा. या ईमान बी केयरफुल. ड्राउट्स आए हैं, फ्रॉस्ट आई हैं ब्राजील में, वियतनाम में स्टॉर्म्स आए हैं, ये दो मेजर प्रोड्यूसर्स थे कॉफी के, जिसके रिजल्ट में सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बड़े इजीली मार्क्स लूज हो जाएंगे अगर आप लोगों ने गलत कर दिया. सबको समझ आ गया या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? All right, there was very clear cut evidence कि सप्लाई ग्लोबली कम हुई है वियतनाम और ब्राजील के वेदर के हालात की वजह से. तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. जस्ट इन केस सम किड्स आर स्टिल वंडरिंग हाउ टू ड्रॉ इट, मैं एक दफ़ा ड्रॉ कर देता हूँ और इसकी ड्राइंग पे ही आपको प्रॉपरली लेबल्ड होगा अगर तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. जी मेरे बच्चों, तो what you need to do is just simply draw the axis, price, quantity, demand, supply, equilibrium, initial वाला initial price and quantity. अब मेरा बेटा सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, बीच में एरो लगाएं, इक्विलिब्रियम ऊपर आया, बेसिकली बैड वेदर की वजह से सप्लाई कम हुई है और एज अ रिजल्ट प्राइस भी ज़्यादा हुई, क्वांटिटी ट्रेडेड भी कम. तो ये सिंपली आपका डायग्राम था जिसके 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे. एनीवन नॉट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉफी बीन्स likely to be elastic or inelastic in any one year? Justify your answer from the information provided. पहले तो मेरे बच्चों, हमेशा चाहे थोड़े मार्क्स का भी है, डिफाइन कर दिया करो की टर्म को, पीईएस को डिफाइन कर दीजिएगा. इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. अब मुझे बताएं, आपके ख्याल में कॉफ़ी की सप्लाई इन इलास्टिक होगी आमतौर पे या इलास्टिक? ओके, आई वांट टू हियर मोर वॉइसेस. एक बच्चे ने इन इलास्टिक बोला. मोर वॉइसेस प्लीज. ओके, हाँ अभी बात करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं. मुझे बताइए, कोई बच्चा इस क्लास में जो फील कर रहा हो कि कॉफी की सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए? क्यों हो सकती है मेरा बेटा?
चले, लेकिन बेटे रिमेंबर इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसकी सप्लाई वेरी वेरी इनलास्टिक होती है। तो प्लीज़ कीप इट वेरी सिंपल, डोंट ओवरथिंक। तूफान आ रहे हैं, फ्रॉस्टें आ रही हैं, ड्राउट्स पड़ रहे हैं, और ये हर साल ही ज़मींदारों के साथ होता है। तो सप्लाई ऑफ कॉफ़ी बीइंग एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट has to be inelastic. As shown in the article, there were frosts, there were storms, there were droughts, there were many such reasons जिसकी वजह से हम नेचर डिपेंडेंट हो जाते हैं और सप्लाई जमींदार के हाथ में इतनी नहीं होती। समझ आ गया मेरा बेटा? सो डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट योर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। एनीवन नॉट क्लियर? Okay, G. Consider whether a buffer stock scheme is likely to be successful in reducing the price fluctuation shown in figure 1.1. I would like one of you to explain what buffer stock scheme is. उसी में ही एक दो मार्क्स आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि इससे प्राइस फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। कंसिडर वेदर है तो एक मार्क इवैल्यूएशन का भी होगा कि क्यों इससे भी इफेक्ट नहीं आएगा। Somebody please define buffer stock schemes. बिल्कुल सही है। इसको किस तरह हम लिखेंगे? A buffer stock scheme is when government buys the excess stock and stores it in their buffer stock, and in the times of shortage they release it from their buffer stock. इससे क्या होता है? सप्लाई स्टेबल हो जाती है और प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कम होती हैं। तो यस, बफर स्टॉक स्कीम शुड हेल्प इन रिड्यूसिंग प्राइस फ्लक्चुएशंस। लेकिन एक मार्क इवैल्यूएटिव पॉइंट कर लें, क्या मसला होता है बफर स्टॉक स्कीम के? डिसएडवांटेज सोचें, क्यों सप्लाई की फ्लक्चुएशंस कम नहीं होगी? जी हाँ, हाँ, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। Buffer stock schemes, however, may not be that successful if coffee bean cannot be stored for a long time, if government does not have enough budget, they do not have enough manpower, या फिर वो स्टोर में पड़े-पड़े खराब हो गए, ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, ये चीज़ें आपने बोलनी हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम मेनली सिर्फ़ एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए होती है। ठीक है, ताकि मुल्क में कहत ना पड़े, इमरजेंसीज जब भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई, गवर्नमेंट ने इस्टैब्लिश रेट पे खरीद ली, अपने स्टोर में रख दी। जब कम प्रोड्यूस हुआ, उसको अपने स्टोर से रिलीज कर दिया, ताकि सप्लाई फ्लक्चुएशंस रुकें, प्राइस फ्लक्चुएशंस रुकें। ये तो बहुत सिंपल इसका। लेकिन क्यों कामयाब नहीं होगी? किस हद तक कॉफी बीन स्टोरेबल हैं? इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कितना बजट है, कितनी मैन पावर है, पड़ा पड़ा खराब तो नहीं हो जाता बफर स्टॉक? ये बातें, रेफ्रिजरेशन के क्या हालात हैं, इस तरह की चीजें। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? हम्म। नहीं, देर आर टू वेज। आपने बाइंग वाला यूज करना है। इन जनरल गवर्नमेंट बाइज द एक्स्ट्रा स्टॉक एंड रिलीजेज इट, ठीक है, व्हेन दे, और उसको सेल करते हैं उस वक्त। लेट्स हैव अ क्लास ऑन बफर स्टॉक समटाइम, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा ये समझ आ जाए। लेट्स सी जी। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे कहीं, या हाँ, गवर्नमेंट में एंड अप ओवर बाइंग और ओवर सप्लाइंग व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम विद करेक्ट एक्सेस शोइंग अ शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपका डायग्राम, ठीक है। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। इफ द पीईएस
Is the PES of supply of coffee beans likely to be elastic or inelastic in any one year? Justify your answer from the information provided. Inelastic, even except perfectly inelastic. Agricultural goods की highly inelastic होती है. Reference to any one of the climatic problems referred to in the text, such as drought and frosts in Brazil or storms in Vietnam, meaning the supply is volatile, unpredictable. Candidates may refer to the nature of agricultural goods, meaning that you cannot simply grow additional output. Explanation must refer to how it affects the responsiveness of supply. सबको समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? Buffer stock scheme ji. Buffer stock scheme occurs when government buy and sell coffee beans to stabilize prices. Government will supply surplus stock of coffee beans in the event of a poor yield to minimize excessive price rises, and buy excessive supplies of coffee beans when yields are sufficiently high enough to cause significant price reductions. बच्चों समझ आ रहे हैं? जब एक्स्ट्रा सप्लाई हो गई, ज्यादा अच्छी पैदावार हुई, प्राइस गिरने का चांस था, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद लिया, उससे डिमांड बढ़ी, वापस प्राइस ऊपर आ गई। ठीक है। फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि इस बार सप्लाई कम हुई है, उन्होंने रिलीज किया अपने स्टॉक से, सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉफी बीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वे दैट मेंटेन्स इट्स क्वालिटी, ये इवेल्युएशन के लिए, इट मे नॉट बी सोल्ड एट द इंटेंडेड मार्केट प्राइस। अदर रेलिवेंट फैक्टर्स मे इंक्लूड द गवर्नमेंट्स बजट, ability to finance the scheme। एक मार्क सिर्फ आपने लेना है, 2 पॉइंट्स दे दो, एक दे दो, यू विल बी सेफ। सबको यहां तक टोटली क्लियर है? सो फार इट वाज अ सिंपल पेपर, स्पेशली पहले 2 क्वेश्चंस। थर्ड वाले में बफर स्टॉक की रिवीजन ना अच्छी होने की वजह से कंसेप्चुअल इशू आ जाता है। अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। असेस द एक्सटेंट टू विच, अब सबसे पहले look at the words assess, look at both positives and negatives, the extent to which, evaluate and then conclude। यानी 4 तक आपको मार्क्स, अप टू 3 वो दे सकता है कि क्यों कॉफी बीन प्रोड्यूसर्स गेन करेंगे हाई प्राइस ऑफ कॉफी बीन की वजह से। अप टू 3 तक दे सकता है व्हाई दे विल नॉट गेन ड्यू टू हायर प्राइसेस। ठीक है। ये कौन बचा कह रहा है लिंक? जैद। जी मेरा बेटा। तो उसके बाद आपने अप टू 3 फॉर वाई गेन करेंगे प्रोड्यूसर्स, अप टू 3 फॉर वाई दे विल लूज बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस ऑफ कॉफी इन 2021। एंड पे 4 मिलेंगे मैक्सिमम आपको दोनों साइड्स के, एक साइड स्ट्रॉन्ग एक वीक, उसने 4 दे दिए। इवैल्यूएशन कमेंट दें कि ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि कॉफी बीन प्रोड्यूसर्स गेन करेंगे, और रीच अ फाइनल कंक्लूजन कि इन ऑल लाइकलीहुड क्या लग रहा है। अब मेरे बच्चों मैं आपको डेटा भी दिखा रहा हूं, जरा लॉजिकली सोचिएगा, टेक योर टाइम। ये लोग कॉफी प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं कॉफी, उसकी सप्लाई कम होने की वजह से जो है प्राइसेस बढ़ी हैं। सो व्हाट विल हैपन? फायदे सोचें पहले। ओके। सप्लाई कम होने से प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता है? आर यू श्योर? जी, तसल्ली से देखें, लॉजिकल बात करें। क्यों? वाई? शाबाश। नहीं बेटे, प्राइसेस हाई होने के रिजल्ट में क्या फैक्टर डिटरमिन करता है कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? हम ये बात बहुत दफा कर चुके हैं। यस। अज्यूम नहीं करना, आपने लिखना है। अभी तक अच्छे आंसर नहीं आ रहे बच्चों, अभी तक बड़े वेग आंसर आ रहे हैं। क्यों गेन करेंगे प्रोड्यूसर्स?
Higher price will result in, yes, अब बेहतर हो गया है. Higher prices will result in greater revenue if the demand for coffee is inelastic, which it usually is, because it is an agricultural product depending on nature. जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ेगा. अब उस रेवेन्यू को कहीं अच्छी जगह यूज करा दे. कहाँ यूज करेंगे कि उनको फायदा हो? और हाँ, yes, they can use it in research and development, develop good storage systems. So going years में, on coming years में उनको supply issues इतने face ना करने पड़े. जी, और क्या फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, जरा इसमें डेटा में देखें. उसने कुछ लिखा हुआ है कि कुछ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स गेन करेंगे. यस, जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट बफर स्टॉक स्कीम यूज कर रही है वहां पे भी बचत हो जाएगी. लास्ट पैराग्राफ में देखें, उसने खुद बोला हुआ है कुछ. लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स इन ब्राजील who survived the immediate impact of drought and frost, हाँ, should gain from huge rise in price of coffee beans. अब जी हम उल्टा चलते हैं. हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. तो एक बार 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट रिवाइज करते हैं. नंबर वन, if the demand for coffee is inelastic, which is it likely to be because of being an agricultural product, price rise will result in a greater revenue क्योंकि proportionately quantity demanded कम गिरेगी. That money of additional revenue they can use on storage capacity, building better equipments, etc. So going future में उनको सप्लाई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और वो पिछला स्टॉक इस्तेमाल कर सकें. फिर इसके अलावा जी, ब्राज़ील जैसे हाई लार्ज स्केल, जो फ्यू लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स थे, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन बिकॉज दे सर्वाइव द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट एंड फ्रॉस्ट. अब इसी तरह मेरे बच्चों 3 पॉइंट सोचो, इसी के ऑपोजिट क्यों ये फायदा नहीं उठाएंगे, प्रोड्यूसर्स को क्यों नुकसान होगा. इफ डिमांड इज व्हाट, शाबाश. बेटे उसकी उल्टी साइड देखो ना, प्रोड्यूसर्स को नुकसान क्यों होगा. 2-3 बच्चों की आवाज थी. आई कुड नॉट फिगर आउट व्हाट दे वर सेइंग. शाबाश बोलें. Okay, those producers which are small scale, do not have spare capacity, their government is not helping with buffer stock, will not gain. ठीक है. अलबत्ता आपने दोबारा डिमांड की बात करनी है. इफ डिमांड फॉर कॉफी सच एज अरेबिका, which is a luxury, could be elastic and their revenue will fall. ठीक हो गया. हमेशा कौन से प्रोड्यूसर्स गेन कर रहे हैं जिनके ऊपर वेदर कंडीशंस का इफेक्ट नहीं आया? सिर्फ ब्राज़ील और वियतनाम में आया है. बाकियों को तो गेन है ना. तो ब्राज़ील और वियतनाम के प्रोड्यूसर्स जो वेदर अफेक्टेड हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा. समझ आ गया मेरे बच्चों? एक दफ़ा मैं समरी दे रहा हूँ पॉइंट्स में. Higher price of coffee beans will increase revenue for producers if demand is inelastic, as demand will fall by a smaller proportion compared to price rise. The increased revenue can be spent on buffers or on making storage capacity, better equipment, research and development to protect them from future uncertainties. Those countries which did not have drought, etc., they will benefit फ्रॉम हायर प्राइस क्योंकि उनके पास सप्लाई मौजूद है. ब्राज़ील के लार्ज प्रोड्यूसर्स विल बेनिफिट क्योंकि वो ड्राउट और फ्रॉस्ट से बच गए थे. अलबत्ता छोटे प्रोड्यूसर्स, अगर डिमांड कॉफ़ी की इलास्टिक है तो रेवेन्यू गिरेगा. साथ में छोटे प्रोड्यूसर्स जिनके पास बफर स्टॉक की ऑप्शन भी नहीं है उनके मुल्क में, और वेदर कंडीशन से बहुत उनको नुकसान हुआ है, सप्लाईज कम हुई हैं,
वो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, उनका रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है? Most likely outcome is that they will once again become victims of unpredictable global market for coffee beans. ठीक है? उसने कहा था thousands of producers elsewhere who lack the power in the market वो स्ट्रगल करेंगे। अब इसी एनालिसिस की बेस पे इवैल्यूएशन है, ट्राई कीजिए जी। क्या लग रहा है, ओवरऑल गेन है कि लॉस है? ये खामोशी मुझे पसंद नहीं आ रही। एग्जाम्स आर टू क्लोज टू नॉट स्पीक ऑन इवैल्यूएशन। ट्राई, कुछ ना कुछ बोलें। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट? पीडी, शाबाश। और किस चीज पे डिपेंड करता है? हाउ मच स्टॉक द प्रोड्यूसर्स हैड फ्रॉम बिफोर, शाबाश। हाउ मच इज द गवर्नमेंट हेल्पिंग? टू कंक्लूड, आपको क्या लग रहा है, ओवरऑल फायदा है या नुकसान है? यस, ओवरऑल नुकसान लग रहा है। या अनसर्टेन बोल दें, या सम विल गेन सम विल लूज। ये भी एक अच्छी वैल्यूएशन होती है जब आपको क्लैरिटी ना हो। सब बच्चों को 100% समझ आ गया है? हम्म। डेफिनेटली फॉल करेंगी, लेकिन मेरा बेटा ये A2 का कॉन्सेप्ट है। आप वैसे भी एफिशिएंसीज प्रोड्यूसर को नुकसान इतना नहीं देती जितना कंज्यूमर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। assess the likely impact of the fluctuations in coffee bean prices on the economies of major producers such as Brazil and Vietnam। डेटा में मैंने देखा है कुछ भी ऐसा खास नहीं है। जनरल नॉलेज पे सोचें। कॉफी बीन प्राइसेस जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, क्या हो सकती है? अच्छा, ठीक है। हम्म। शाबाश। अच्छा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, टैक्सेस रेवेन्यू पे? प्राइसेस बढ़ी हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, पहले फायदे सोचो। गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। उस रेवेन्यू को वो कहाँ इस्तेमाल करें? एजुकेशन, हेल्थ केयर, बफर स्टॉक्स बनाएं ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट भी आए और डाइवर्सिफिकेशन भी आए। जी मेरा बेटा, कोई कमेंट करना चाह रहा था? Okay. Why would these fluctuations in coffee bean prices have a negative impact? बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को क्या मसला होगा? उनकी प्रोड्यूस, शाबाश, कोशिश करें। सिर्फ अमीन को मैंने नहीं पढ़ाना, बाकी सब भी बोलो प्लीज। कम ऑन गाइस। जी जी। हाँ, अमीन बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे आज। कम ऑन। शहरजाद, अरूबा, फातिमा, बीहा, गाइस कम ऑन। क्या नुकसान होंगे इकोनॉमीज को? इतने बड़े तूफान आए हैं बेटा, सारा कुछ हुआ है। प्रोड्यूस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्यों वो स्ट्रगल करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे सोचें, क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे सोच सकते हैं, लॉजिकली आए। अगर डिमांड इलास्टिक है तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, गुड। और जी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर कॉफी महंगी हो रही है, लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी या चीपर कॉफीज पे स्विच कर जाएंगे। तो एक्सईडी को बीच में लाएं, इनकम्स फॉल होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। कितनी बातें आप कर सकते हो। अब इवैल्यूएशन में fluctuations in prices are going to have mostly negative impacts on major economies of Brazil and Vietnam, who are highly dependent and are largest producers of coffee
इन द वर्ल्ड, उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है. इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच गवर्नमेंट इंटरवीन्स, how much producers can have excess stocks etc to save themselves from this and the economy. समझ आ गया मेरी बात? अब एक बार जरा देखते हैं कि हमने जो बात की उसका कितना एक इफेक्ट हुआ. If the demand for coffee is price inelastic, then coffee producers would be expected to gain in terms of increased revenue. For example, increased revenue per pound of coffee sold, increased funds available to invest and innovate in better methods for storing coffee beans in the event of future storms. Producers in Brazil and Vietnam with existing stocks of coffee that survived the frost and storm would expect to increase हर के एक दो marks हैं. Similarly, producers in countries not affected by climatic problems benefit. ये हम कर रहे हैं producers वाला. Up to three, why will they not benefit? If demand for coffee is elastic, then coffee producers would not be expected to gain in terms of higher revenue. For example, those producers unable to produce a sufficiently large enough yield, इतने छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, उनकी प्रोडक्शन ख़राब हो गई तूफ़ानों की वजह से, बिजनेस क्लोजर्स हुए. Similarly, depending on XCD, revenue may fall if huge price increase in 2021 may result in people switching to substitutes like tea. अब इवैल्यूएशन जी, हमने साफ साफ बोलना है कि some will gain, some will lose. It will depend on the PED, the ability of producers to have previous storage of coffee beans, and how much the weather impacted them, their size, etc. To conclude, in general, it's supposed to be negative effects. Some businesses, however, will gain who are large. समझ आ गया मेरा बेटा? अब इकोनॉमी पे जाते हैं. Rising coffee prices will result in higher taxes paid to the government, which can be used to finance other projects, improvement in education, development, or infrastructure, and reduce a country's reliance on coffee bean production. This would not only lead to economic growth, more employment, बल्कि potential long run capacity भी बढ़ेगी, diversified economy हो जाएगी. लेकिन unpredictability of coffee bean may reduce business confidence, with producers preferring to save the higher revenues to cross subsidize those time periods when prices have fallen. Cross subsidize means जब business खुद अपने आप को subsidy देता है for those periods जब prices गिरी हुई हैं. Therefore, increases in investment may be minimal and have an overall smaller contribution to economic growth. Unemployment भी आ सकती है और पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है. तो ओवरऑल हमने दोनों को इकट्ठा करना था, क्लाइमेट चेंज को बीच में लाना था, प्रोड्यूसर्स के साइज को, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, और उसके हिसाब से कंक्लूड करना था. I know it was a tougher section A, but I expect you guys to be tougher now. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल जो आप दोबारा पूछना चाह रहे हो? All right, let's. जी, इनइलास्टिक होता है, लेकिन मेरा बेटा आप दोनों साइड से मार्क्स ले सकते हो इफ कंडीशन यूज करके. नहीं, जाते हैं लेकिन कम इलास्टिसिटी है. हाँ, ट्रू दैट. चलें जी, लेट्स मूव टू सेक्शन बी. पहले मेरे बच्चों क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा. आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन फिर भी सिलेक्ट करें. आई थिंक थ्री इज़ अ गुड चॉइस एज वेल. ठीक है, लेकिन इनक्वालिटी मेजर करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, आप हैंडल कर सकोगे? जी, बी पार्ट तो बहुत आसान है. टू, ओके. आई एम मोर लीनिंग टूवर्ड्स, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं. लेट्स स्टार्ट विद
2A, पहले नॉलेज के 3 मार्क्स लेते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक विद द एड ऑफ एग्जांपल्स, 1 मार्क एग्जांपल्स का होगा, दोनों एग्जांपल्स का। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। अभी यहाँ पे रुकते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं फ्री गुड्स क्या होती हैं। शाबाश, न्यू आवाजें। गुड्स विद अनलिमिटेड सप्लाई, 1 मार्क आ सकता है। और बताएं, थोड़ा सा और भी बताएं फ्री गुड्स के बारे में। देयर अनलिमिटेड सप्लाई, व्हाट एल्स डू दे इंटेल, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? क्या? नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, इसमें वो नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो नहीं होता बेटे। हाँ, अच्छा थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि फ्री गुड्स हम बिल्कुल ब्रीफली पढ़ के मूव कर जाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड इन सप्लाई एंड आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। There is zero opportunity cost of consumption like fresh air. मैं भी उसी में सांस ले रहा हूँ, आप लोग भी, किसी के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही। एंड अ प्राइस कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, फ्रेश एयर। समझ आ गया? फ्री गुड्स ये नहीं होती कि गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, वो लिमिटेड गुड्स हैं मेरे बच्चों। अलबत्ता फ्री गुड्स हैं जिनकी अनलिमिटेड सप्लाई है, नेचुरली, ओशन वाटर, सनलाइट, एयर, फ्रेश एयर, ठीक है। दे हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मैं एहतियातन ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं से मार्क ना कटे, और एग्जाम्पल का 1 मार्क डेफिनेटली, दोनों का मिला के। अब जी पब्लिक गुड्स तो आपको पता ही होते हैं। ब्रीफली मुझे बता दें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसका मतलब क्या। नॉन राइवल, नॉन राइवल का क्या मतलब है? Abdurrahman, I've tried to say it all in English from now on. Consumption by one consumer does not reduce the availability for others. This is non-rivalry. Non-excludable होते हैं। इसका क्या मतलब है? Yes, no one can be stopped from using once they are provided. Example, 4-5 ही हैं इसकी। स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, लाइट हाउसेज, फ्लड डिफेंसेस, नेशनल रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। बस इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, वैक्सीनेशन जो हेल्थ केयर में आती है, सब प्राइवेट गुड्स हैं। अब वो कहता है कंसीडर वेदर फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, दैट्स वाई नॉन। अब करते हैं बात। फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट को हम फ्री गुड कर सकते हैं। लेट्स गो वेरी स्लोली, जज देम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। जिनको ये फ्री मिल रही है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। पैसा कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास? तो किसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है? गवर्नमेंट को भी और टैक्स पेयर्स को भी। कुछ फॉलो कर रहे हो? सो देर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सेकेंडली, इसकी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, लिहाजा इसको फ्री गुड कंसिडर नहीं कर सकते। हो सकता है डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए और गवर्नमेंट प्रोवाइड ना कर सके हर किसी को फ्री ऑफ चार्ज, बाद में पैसे चार्ज करें, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के साथ हुआ था कुछ टाइम के लिए। नहीं नहीं नहीं, इट्स नाइदर अ पब्लिक गुड, इट्स बेसिकली अ प्राइवेट गुड, बट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फ्री। समझ रहे हैं? ये मेरिट गुड है ना, वैक्सीनेशन है, ठीक है, हेल्थ केयर है। समझ आ गया मेरे बच्चों? एक दफा रिकैप। मेरा नहीं इस ख्याल की इसमें ज़रूरत है, कर दें, चले कोई मसला नहीं है। 3 मार्क्स फॉर नॉलेज हमें मिलेंगे फ्री गुड्स एक्सप्लेन करने पे पहले। दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई, देर इज ज़ीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग देम, नो प्राइस कैन बी चार्ज्ड, सनलाइट, फ्रेश एयर, ओशन वाटर, कोई एक एग्जाम्पल। Whereas public goods are non-excludable, means once they're provided, no one can be stopped from consumption. Non-rival consumption by one person does not reduce the availability for others. उसके बाद जी
आप फ्री राइडर प्रॉब्लम की बात भी बेशक कर दो, और उसके बाद एग्जाम्पल लाइट हाउसेज, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा. Free of charge vaccinations, though received free at the point of consumption, but there is an opportunity cost for government because they cannot use the tax revenue at other source at other causes like roads. And also you know what I mean कि जो टैक्स पेयर है उसको भी कॉस्ट पड़ रही है, तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद फ्री गुड नहीं है. इट्स नॉट अनलिमिटेड इन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से बढ़ सकती है. जी मेरा बेटा. हाँ हाँ, फ्री ऑफ चार्ज फॉर यूजर है, नॉट फॉर टैक्स पेयर, नॉट फॉर गवर्नमेंट. इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं. समझ आ गया? तो इट कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अ फ्री गुड. फ्री गुड्स हैं जो नेचर का तोहफा है, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा. तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा. एनी वन, एनी क्वेश्चंस? नहीं ना बेटे, ये प्राइवेट गुड ही है, बस गवर्नमेंट फ्री दे रही है आपको. नहीं, आप बेशक ना करो, आप कह दो प्राइवेट गुड है बाय नेचर, क्योंकि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, अनलिमिटेड इन सप्लाई नहीं है, तो फ्री गुड बिल्कुल नहीं हो सकती. आपने मेन फोकस फ्री गुड पे रखना है. समझ गए? इट्स नॉट अ फ्री गुड बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है. समझ आ गया सबको? इट्स अ मेरिट गुड, प्राइवेट गुड इन नेचर, प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर. फॉर फ्री डज नॉट मेक इट अ फ्री गुड. बिल्कुल सही है. बच्चों सबको समझ आ गया है? लेट्स जस्ट चेक विद द मार्क्स स्कीम एज वेल. क्या कह रहे हैं जी वो? सबसे पहले फ्री गुड्स आर नॉट स्कार्स एंड हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वही बात. नो प्राइसेस एज नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम. बीच में स्लैश मीन्स एक मार्क यहाँ तक मिल सकता है, और अगर ये नहीं लिखा, ये लिख दिया, तब भी एक मार्क. Public goods have two main characteristics: non-excludability, non-rivalry. With the brief explanation of both terms, बच्चे गलत कर जाते हैं. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी में राइवलरी लिख देते हैं, और राइवलरी में एक्सक्लूडेबिलिटी. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, किसी को रोका नहीं जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता फ्रॉम कंजम्पशन वंस दे प्रोवाइडेड. नॉन राइवलरी, मुकाबला नहीं है, एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे के बेनिफिट में कमी नहीं हो रही. Provides accurate example of both: fresh air, street lighting, respectively. For example, vaccine is free at the point of use to consumer. However, there is a cost to taxpayer. This means there is an opportunity cost to the government, as providing vaccines involves the use of scarce resources. If government provides free of charge vaccination, there is no price charge to consumer. This means consumers do not need to use their own scarce resources to be vaccinated, which means there is no opportunity cost to them, and they do not need to. अच्छा, वो alternative approach है, छोड़ दें इसको. Evaluation. Up to 2 marks for evaluating whether or not free to charge vaccination offered by government can be considered as a free good. For example, there is opportunity cost to the government. This can be used at other sources. It's not an unlimited supply. Demand can exceed supply. समझ आ गया मेरे बच्चों? इसको इग्नोर कर दें, लेकिन वैसे वो क्या कह रहा है? इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन, देयर इज नो प्राइस चार्ज टू द कंज्यूमर. दिस मीन्स consumers do not to use their own money, their own scarce resources to be vaccinated, which means there is no opportunity cost because they do not need to make choice between consuming the vaccine and reduce the consumption of other goods. यहाँ वो फ्री गुड के तौर पे फॉर द कंज्यूमर बात कर रहा है. उसको तो फ्री मिल रही है, ठीक है ना? गॉट इट? ना तो ये फ्री गुड है, याद रखिएगा. इवैल्यूएशन में फिर भी आप फ्री नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इसलिए पहली अप्रोच इज बेटर, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स शुड टेक. समझ आ गया मेरे बेटा? उन्होंने थोड़ा सा, बच्चों ने काफी ने लिख दिया होगा, तो उन्होंने आसानी कर दी, उन बच्चों को भी मार्क्स दे दिए कि फ्री ही है जी. समझ आ गया मेरे बच्चों? Okay. Next question, G. Assess whether the expected benefits of providing healthcare services free of charge at the point of use exceed the likely cost. कोई की टर्म नहीं है. सबसे पहले अप टू 4 हेल्थ केयर जब फ्री ऑफ चार्ज
पॉइंट ऑफ व्यूज पे दी जाएगी, उसके कोई 3 फायदे वेल एक्सप्लेन या 4 पार्शली एक्सप्लेन। 4 मार्क्स आपको। Yes, poor people who are unable to afford healthcare, they will get it free of charge. As a result, now they will become more healthy, more productive. Absenteeism will reduce. Healthcare falls under what kind of goods? मेरिट गुड्स, जो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से कम कंज्यूम हो रही होती हैं, वो मार्केट फेलियर भी दूर हो सकता है। और क्या फायदा है जी हेल्थ सर्विसेज? ठीक है, मान लेते हैं। और बताएं। शाबाश, आई वाज़ लुकिंग फॉर दैट। इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, शाबाश, शाबाश। परफेक्ट, जो पहले काम नहीं कर सक रहे थे, अब वो काम कर सकेंगे। अर्ली इलाज करवा सकेंगे क्योंकि कॉस्ट की वजह से वो इलाज लेट करवाते थे और उनका इंश्योरेंस के मसले। हाँ, इंश्योरेंस के मसले खत्म हो जाएँगे क्योंकि वेस्ट में तो इंश्योरेंस के बगैर आप हेल्थ सर्विस ले नहीं सकते। अब फ्री ऑफ चार्ज है तो सब यूज़ कर सकेंगे, इक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन कॉस्ट क्या आएँगी? कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर गुड्स। शाबाश, और बताएँ। क्या बोल रहे हैं? शाबाश, शाबाश। गवर्नमेंट जब भी प्रोवाइड करती है, क्वालिटी लो होती है, इनएफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर करता तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती। हो सकता है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नो हो। ना भी ना करो, पर चलो कर लेते हैं। ठीक है? तो मतलब चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख़्याल में एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। एक और बात भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जब हेल्थ केयर प्रोवाइड पड़ा करा रही है, तो हो सकता है उसको बोरो करना पड़े। उसकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब एंड पे बताएँ जी, मैं एक बात आपको हिंट दे दूँ। यस, हाँ, शाबाश। मुझे बताएँ, हमने कभी इकोनॉमिक्स में फ्री ऑफ चार्ज के हक में बात नहीं करनी, इस बात को पल्ले बांध लें। As discussed above, there are some benefits of lower inequality, greater choice for poorer consumers, better health, higher economic growth. But the negatives of free of charge provision is inefficient allocation of resources, opportunity cost, etc. And it can never be justified under basic economic theory because in no ways economics justifies it. It can be only justified on social and moral ground. समझ आ गया मेरे बेटे? ऐसे क्वेश्चन जिसमें फ्री ऑफ चार्ज चीज़ों देने की बात बात हो रही है, ये हमेशा नॉर्मेटिव है। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, मोस्टली इसके हक में बात नहीं करेंगे। समझ आ गया? चलिए, आप मशवरा भी दे सकते हैं कि सबके लिए ना हो, रिच शुड पे, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता रहे, और पुअर को आप फ्री ऑफ चार्ज कर दें। लेकिन इकोनॉमिक्स इसको भी जस्टिफाई नहीं करती। इकोनॉमिक्स कहती है ओनली द वन हु कैन शूट द लेदर शेल ईट द मील। दैट इज हाउ रूथलेस दिस सब्जेक्ट इज, बट दैट्स हाउ इट इज। एफिशिएंसी के बारे में है ना, स्कार्सिटी के बारे में। ऑल राइट, अब वी डू नॉट हैव टाइम टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल इंशाल्लाह तीनों करके अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे, unless you guys have any questions.